بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور آج ہم ایک مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جو بہت ہی پیاری ہماری بیٹی ہیں۔ دعا ان کا نام ہے، دعا فارسٹ والی، اور ہمارے اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ذہین بچی ہیں۔ تو آج ہم ان کے بارے میں آپ کو معلومات دلوائیں گے کہ یہ کیا کیا کرتی ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لانا چاہتی ہیں۔ تو آئیے اب ان سے تعارف کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے کام کو آگے بڑھاتی ہیں اور کیا چاہتی ہیں۔ تو چلیں، دعا السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بیٹا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹا مجھے آپ اپنا تعارف کرائیے ذرا، جو تھوڑا بہت ہے میں نے کرایا لیکن وہ ناکافی ہے۔ آپ اپنا تعارف کرائیے ذرا۔ جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام دعا واٹر والی ہے اور میرے یہاں اسکول آواز آپ کی تھوڑی کٹ رہی ہے، ذرا آپ دیکھیے کیوں کٹ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی آنٹی، جی ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اب صحیح ہے، اب صحیح ہے بیٹا۔ بسم اللہ آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام دعا فارسٹ والی ہے اور میں ریحان اسکول کننگی کیمپس لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا تعلق کراچی سے اور میری عمر 12 سال ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ آپ 12 سال کی ہو اور ماشاءاللہ بڑی ہمت والی ہو۔ تو آپ کو یہ اس اسکول کے بارے میں کیسے پتہ چلا، یہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ کس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس اسکول میں آئیں؟ جی آنٹی، تو اس اسکول کے ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ میرے والد صاحب جو ہے تو فیس بک پہ سر ریحان کی ویڈیو دیکھا کرتے تھے، جن سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے میری بہن آمنہ ہمت والی کو انکیوبیٹر میں ڈالا، تو وہاں سے اس نے بہت کچھ سیکھا، کینوا، فائیور، مطلب بہت کچھ سیکھا۔ تو میرے والد صاحب نے سوچا کہ آنے والا دور اسی کا ہے، کیوں نہ تم لوگوں کو بھی ڈالا جائے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے شیشہ سے ہجرت کی کننگی میں، اور ہم ریحان اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروایا ہمارے والد صاحب نے ہمارا، اور وہاں پہ اب اس طرح ہمیں ریحان اسکول کا پتہ چلا، اور ہم ریحان اسکول میں آ کے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے اسکول میں آ کے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے افراد یہاں پر سیکھ رہے ہو، کون کون سیکھ رہا ہے کیا، اور کیا کیا سیکھ رہے ہو؟ جی ہم 4 بہنیں ہیں جو سیکھ رہی ہیں ریحان اسکول میں، اور میرے والد صاحب بھی آتے ہیں اسکول میں، اور مما بھی آتی ہیں۔ تو ہم لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، جیسے کینوا پوسٹ بنانا اور اسٹوری پوسٹ بنانا، فیس لیس ویڈیو بنانا، اور کالینی کرنا، انٹرویو کرنا، یہ ٹیڈکس بنانا۔ تو یہ سب کچھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے سیکھ کے۔ تو یہ ہم اتنے افراد ہیں جو یہ سیکھ رہے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، کیا آپ لوگ انگلش وغیرہ کی کلاس وغیرہ بھی لیتے ہو کیا؟ کس طرح سے آپ پڑھتے ہو؟ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے انگلش کلاس لینا؟ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور کیا کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے یہاں پر؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جی ہاں، ہمارے اسکول میں انگلش کی کلاس ہوتی ہے، جو لیتے ہیں سر مرزا، جو بہت اچھے سے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اچھے سے انگلش سکھاتے ہیں، بہت ان کی کلاس لینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو وہ بہت اچھی بیسکس سکھاتے ہیں، باڈی لینگویج کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے انگلش سکھاتے ہیں کہ دوسرا ہم جیسے کسی انگریز سے بات کریں تو اس کو ایسے ہی لگے جیسے ہم انگریز سے، بہت اچھی طرح سے وہ ہمیں انگلش سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی کلاس لیتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔
वो रट्टा नहीं लगवाते बल्कि वो जहन में बिठवाते हैं। इस तरह वो इंग्लिश सिखाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वाक़ई सर अनीस बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जिनकी क्लास मैं भी लेती हूँ। अच्छा, तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ जब आप आए थे तो आपको ये स्कूल कैसा लगा था? आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर आवाज़ आ रहा है। आपकी आपकी आवाज़ कट रही है। अब सही हुआ? अब सही हुआ बेटा? अब आवाज़ सही हुई? हाँ बेटा, अब आवाज़ सही हुई? आपकी तरफ से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, आप अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? बस हुआ, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शोर आ रहा है अभी भी? अब देखो, अब सही हुआ? जी आंटी, आंटी जी? बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। बहुत ज़्यादा शोर अभी आ रहा है? नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी अभी भी आ आपकी रहा आवाज है? आ रही है। नहीं नहीं। चलिए, अब आप अपना बताओ, आपकी आवाज़ भी साफ है, आप सुनाओ। आपको जी आपको ये स्कूल कैसा लगा? मैंने आपसे पूछा था ना बेटा, वो उसका जवाब दे दो। ये मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्कूल में आए और ये दूसरे स्कूलों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दूसरे स्कूलों से अलग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में आके। मैंने देखा यहाँ की फैसिलिटेटर्स और यहाँ के बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटेटर से मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैं मिस मिसबा की क्लास में गई थी, तो मिस मिसबा ने बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने बोला अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं वक्त भी नहीं खड़ी हो रही थी। मिस मिसबा ने मुझे खड़ा किया और मुझे बताया कि ये बोलो, मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। तो मुझे बताया, फिर मैं खड़ी हुई, मैंने बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे बहुत मज़ा आया स्कूल को देख के, और उस स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ बेटा, जब आप आए थे आपसे बोला नहीं जा रहा था, आप छुप रहे थे कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगी। मुझे भी याद है कि मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। और अब माशाल्लाह आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया बेटा? अब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया? आप पहले कॉन्फिडेंस नहीं थी ना, ये पूछ रही थी मैं। आंटी दोबारा से सवाल करें, आपके मोबाइल से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, ये पूछ रही थी मैं। कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर? जी आंटी, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, इसलिए तो मैं अभी आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठी हुई हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अभी दूसरे बंदे से बात कर सकती हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस स्कूल में कि मेरे को आ गया है। पहले तो बेसिक मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, घर में थी, तो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं दूसरे बंदे से बात कर सकूँ।
तो अपना इंट्रोडक्शन करवा सकूँ तो बिल्कुल भी नहीं था। इस स्कूल में आने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो मैं इसलिए ही अभी इधर बैठी हूँ, आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह। आपको कितना अर्सा हो गया स्कूल में आए हुए? तो 1 से 1.5 मंथ हो गया है आए हुए। कितना अर्सा हो गया बेटा? आपकी आवाज नहीं आई थी। आंटी शोर बहुत आ रहा है आपके मोबाइल से। नहीं आ रही थी। जी आंटी सवाल नेट प्रॉब्लम है, क्या है? आंटी आपकी नेट प्रॉब्लम है शायद। सवाल करें। जी बेटा। आपकी आवाज नहीं आ जी रही, क्या सवाल बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही साफ आपकी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो बेटा मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप मुझे जवाब ये दे दो कि आवाज आई है? यहाँ पे भी शोर जी होने जी लगा। तो मैं ये पूछ रही थी आपसे, ये मैं पूछ रही थी कि आपको यहाँ आए हुए कितना अर्सा हो गया, स्कूल में आए हुए कितना अर्सा हो गया? आंटी मुझे स्कूल में आए हुए 1 से 1.5 मंथ हो चुके हैं। यस। ये वाले कहाँ है? इसमें नहीं है। इसमें दूसरा उसमें देख लें। तो बेटा आपने बताया महीने 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीने में आपने क्या क्या सीखा? मम्मा जी आंटी मैंने बहुत किया है, जैसे कि ग्रैंडमा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो और वीडियो का रिव्यू देना और कॉलेज करना, इंटरव्यू करना, ये बहुत मैंने 1.5 मंथ किया है। और ये हमारे सही, माशाल्लाह। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताओ आपको वहाँ यहाँ इस रेहान स्कूल के स्टूडेंट कैसे लगे? आपका उनसे दोस्ती हुई नहीं हुई? रेहान स्कूल के स्टूडेंट जो हैं वो आपको कैसे लगे? आपको उनसे दोस्ती हुई या नहीं हुई? जी आंटी मुझे रिहान स्कूल के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे लगे और मेरी दोस्ती भी जी हुई है, मतलब बातचीत हो जाती है। जी आंटी मुझे रिहाना स्कूल के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे लगे, मेरी बातचीत हो जाती है, मतलब दोस्ती, समझो दोस्ती होती है, मतलब बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से। कोई काम होता है, किसी से पूछना हो तो उससे पूछ लेते हैं, उसने पूछना हो तो हमसे पूछ लेते हैं। इस तरह आंटी हमारे हो जाती है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा बेटा आप फेसलेस वीडियो वगैरह भी बनाते हो? फेसलेस वीडियो बनाते हो आप? आपको फेसलेस वीडियो बनानी आती है? आवाज आ रही है मेरी? जी आंटी हम लोग फेसलेस बनाते हैं, आपको बता जी देती हूँ कि हम फेसलेस किस तरह हम बनाते हैं। तो हम फेसलेस इस तरह बनाते हैं कि हम चैट जीपीटी के पास जाके
स्क्रिप्ट लिखवाते हैं जी। और इसके बाद हम करते हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही बेटा, आप अपनी आवाज़ को देखो, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही। अटक रही है बहुत ज़्यादा, आप अपनी आवाज़ देखो। हैंड फ्री लगी हुई है, क्या चक्कर है देखो। पहले पहले सही आ रही थी, अभी क्यों सही नहीं आ रही? आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही। आवाज़ चेक करो। तो आंटी आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आ रही है आपकी आवाज? अब जी, जी, अब आ रही है, अब बोलो। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम फेसलेस किस तरह बनाते हैं। तो हम चैट जीपीटी के पास जाके हम उसकी स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। वो लिखवाने के बाद हम जाते हैं गूगल पे, कॉपी करके गूगल पे जाके हम रिसर्च करते हैं टीटीएस मेकर। हम टीटीएस मेकर रिसर्च करके हम उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। फिर हम नीचे जाते हैं तो जोन सी भी आपको आवाज़ सिलेक्ट करनी है, आपको अच्छी लगती है तो आप वो आवाज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे हमने जाना है तो उधर कोड आता है, तो हमें वो कोड डालना होता है। तो हम वो कोड डाल के फिर हम क्लिक कर देते हैं यस पे, तो वो हमारी आवाज़ तैयार हो जाती है। तो फिर हम जाते हैं कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद हम जो स्क्रिप्ट हमने सुनी होती है तो हम उसके टाइप की हम पोस्टें लगाते हैं, वो पूरी वीडियो तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं एनिमेंट पे और उधर से हम जो हमने आवाज़ डाउनलोड की होती है टीटीएस मेकर से तो वो हम लेके हम उस पे लगा देते। तो इस तरह हमारी फेसलेस तैयार हो जाती है। और फेसलेस का मतलब ये भी है कि फेस के बगैर वीडियो बनाना। माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेटा, आपने सही तरीका बताया कि किस तरह से आप फेसलेस बनाते हो। अच्छा, आप इंटरव्यू वगैरह देने लगे हो, लेने लगे हो? तो इंटरव्यू देने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? आप ज़ाहिर बात है, नए-नए आपने इंटरव्यू शुरू किए हैं, तो आपको इंटरव्यू में मज़ा आता है? क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है? इसके बारे में आप कुछ बताओगी हमें? जी आंटी, कि मैं इंटरव्यू देने में मुझे कोई परेशानी तो नहीं होती, पर जब मैं नई नई थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं इंटरव्यू किस तरह दूंगी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं इंटरव्यू किस तरह दूंगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं जब रेहान स्कूल में आई तो मुझे कॉन्फिडेंस दिया गया कि इंटरव्यू लेना है। इसके लेने के बहुत सारे फायदे हैं कि हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, तो हम उनसे काम भी ले सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हमारे काम आ सकता है। तो हमने बहुत फ़ायदा होता है इंटरव्यू से। तो बहुत जानने को भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है और दूसरे बंदे को भी सीखने को मिलता है और जो हमें देख रहे होते हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इंटरव्यू लेने और देने के ये फ़ायदे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा बताया बेटा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कैनवा पोस्ट वगैरह भी बनाती हैं आप? तो कितनी पोस्टें डालती हैं? स्टोरी पोस्ट वगैरह भी डालती हैं या नहीं डालती? जी आंटी, हम कैनवा पोस्ट बनाते हैं और स्टोरी पोस्ट भी बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह बनती है। तो हम पोस्टर पे चलते हैं तो पोस्टर इस तरह बनती है। हमारे पूरे स्कूल का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 3 पोस्टों की स्क्रिप्ट आती है। हम उसको डाउनलोड करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, सॉरी, कॉपी करने के बाद हम जाते हैं कैनवा पे। कैनवा पे जाके हम पहले उसको जो लिखा हुआ होता है उसको हम देखते हैं, उस टाइप की हमें पोस्ट डिज़ाइन करनी होती है। हम वो डिज़ाइन करते हैं और फिर हम उसको जो कॉपी हमने किया होता है उसे हम उस डिज़ाइन पर पोस्ट करते हैं। और फिर हम जाते हैं कैमरे पे, तो वहाँ से हम लोगो लेते हैं। स्कूल का जो लोगो है वो लेने के बाद हम लोगो लगा देते हैं। तो लोगो लगाने के बाद हमारी पूरी पोस्ट तैयार हो जाती है। तो फिर हम उसे डाउनलोड करके फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हैं। इस तरह हमारी पोस्ट तैयार हो जाती है। जो और स्टोरी पोस्ट जो है
वो भी इसी तरह आसानी से बन जाती है। इसी तरह हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उस चाहिए हम उसके बाद हम जाएंगे, वो स्क्रिप्ट हम कॉपी करके हम जाएंगे कैनवा पे जाने के बाद हम तो उस स्क्रिप्ट के टाइप के हम पोस्ट लेंगे और उसको तैयार करेंगे, डिजाइन करेंगे। करने के बाद हम उसे डाउनलोड करके फेसबुक के ऊपर जाएंगे, उसको अपलोड करेंगे और जो हमने स्क्रिप्ट कॉपी की थी और उसे भी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारी स्टोरी पोस्ट भी तैयार हो जाती है और पोस्टें भी तैयार हो जाती है। शाबाश बेटा, जबरदस्त, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हो। अच्छा बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप अगर उससे विशेष मांगोगी तो क्या मांगोगी? जी आंटी, अगर मुझे जी दुआ बेटा, बताओ आपको अगर अलादीन का जी मिल जाए तो मुझे उससे 3 ख्वाहिशात यही होंगी कि मैं हमने अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे क्या 3 विशेष मांगोगी? जी वन पहली मेरी विशेष होगी कि बहुत सारे पैसे कमाऊं और दूसरी होगी कि पाकिस्तान को मैं सब मुल्कों से ऊपर देखूं और तीसरी मेरी ये होगी कि मैं मम्मी क्या और तीसरी मेरी ये होगी कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को हज उम्रा करवाऊं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी 3 पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए हमें। मेरी 3 पसंदीदा डिशेस जी बेटा, 3 पसंदीदा डिशेस आपकी कौन सी हैं? जी मेरी 3 पसंदीदा डिशेस है। मैं वैसे तो सब कुछ खा लेती हूँ, कोई पसंद वगैरह तो नहीं है, जो सब कुछ खा लेती हूँ। मतलब पसंद तो नहीं है, जो मिलता है वो खा लेती हूँ, जैसे कुछ भी हो जाए मैं खा लेती हूँ। फिर भी कोई तो 3 ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ज़्यादा शौक से खाती हो। जी ज़्यादा शौक से तो मैं खा लेती हूँ, मतलब कोई भी नहीं है। सब कुछ ही पसंद है, सब जो मिल जाता है वो खा लेती हैं आप। चलें, अच्छा, आपके 3 पसंदीदा शहर कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से शहर? सब कुछ पसंद है, कोई चीज़ बगैर पसंद नहीं है आपको? जी नहीं। यानी कि जहाँ आप रहती हो कराची आपको पसंद है? जी मैं पूछ रही हूँ कि आप कह रही हैं कि कौन सी है, कौन सा पसंद, तो मुझे तो वही, मतलब इतना शौक नहीं है कहीं जाने का, मतलब कोई शहर वगैरह के मैं वहाँ जाऊँ नहीं। तो मैं जिस मुल्क में रहती हूँ पाकिस्तान, मुझे वही पसंद है और उसका जो एक शहर है शेरशाह, और जहाँ पे हम रहते थे वो। चलें, अच्छा, ये तो बताइए आपकी पसंदीदा शख्सियत 3 कौन-कौन सी हैं? ये तो पता होगा आपको। 3 कौन-कौन से अशख़ास हैं आपको जो पसंद हैं? जी वो तो मुझे पसंद है। पहले तो मेरे वालिद साहब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरे सर रेहान अल्लाह वाले, और तीसरे आज़ाद चाय वाले। ये 3 शख्सियत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपको जो शख्सियत पसंद है ये वाक़ई पसंद के काबिल हैं।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहरों में ज़्यादा जाना पसंद करेंगी? अगर घूमने जाओ तो कहाँ जाना पसंद करोगी? जी बेटा। मैं क्लिफ्टन जाना ज़्यादा पसंद करूँगी। कोई शहर आपको पसंद और नहीं है? और शहर कराची के अलावा? जैसे लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह? हाँ, मुझे पसंद है, मैं जाना चाहूँगी। हाँ, लाहौर जाना चाहूँगी मैं। चले माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आप अपने बहन भाइयों को जो यहाँ सुन रहे हैं, आपके व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, इनको जो सुन रही हैं, आप कोई पैगाम देना पसंद करेंगी? आप क्या इनसे कहना चाहेंगी कि ये क्या करें ऐसा कि इनको खुशहाली मिले? मेरा इनसे यही पैगाम होगा कि ये स्किल सीखे। आने वाला दौर इसी स्किल का है। रेहान स्कूल में आए और ये स्किल सीखे। अगर रेहान स्कूल नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ये स्किल सीखे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला दौर इसी का, इसी टेक्नोलॉजी का है। तो ये सीखे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही मेरे पैगाम होगा इनसे। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप, अल्लाह ताला आपको जो आपके इरादे हैं उनमें आपको कामयाबी अता फरमाए। ये थी हमारी बेटी दुआ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाबात दिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जो इस हुनर में आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं, उनको तरक्की और कामयाबियाँ अता फरमाए रब्बुल आलमीन। और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करे और सर फहरिस्त दुनिया में अच्छे मकाम तक लेके जाए। परवरदिगार हमारे मुल्क को चार चांद लगाए रब्बुल आलमीन। हमारी इन दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।